Yes, beta. So, let us start our class by chanting Omkaram 3 times. Shubhra, you can join me. Sairam, and I welcome you once again. Right? So we have started chapter number 1. Okay, beta. So let me put in my screen. Okay. So to started, right, beta. So in the last period, we discussed about, है ना? What are crops? Can you hear me, beta? Shubhra? Yes, sir. Yes, sir. Am I audible? Yes, beta. So just you can see crop. How do we define crop? We define crop as when plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. Crop. Okay, beta? This study also types of crops, kharif crop and rabi crop. The crops which are shown Rabi in crop. season are called kharif crops. Example, याद रखिएगा नाम सबका, paddy, maize, soybean, groundnut, cotton. These are called kharif crop. Kharif crops need more water and less sunlight. Okay, beta? In rainy season, it rains a lot, but sunlight is little less as compared to the other parts of the year. Now, rabi crop, the crops which are grown in the winter season are called rabi crops. Examples, wheat, gram, tea, mustard, linseed, etc. Linseed जानते हैं किसे बोलते हैं? सर तिल्ली को. तिल्ली को? या. So now we'll discuss about basic practices of crop production. As we discussed, farmer has to do certain activities, certain processes for growing crops in the field, and these are called basic agricultural practices. Okay, you can see your science book also. Just see your science book, beta. Basic agricultural practices. Okay, है ना? तो डिफरेंशिएट तो कर लोगे बिटवीन खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप, शुभ्रा? यस सर. है ना? आज जब भी डिफरेंशिएट आए कैसे करोगे? सर बेटा टेबल बनाकर कॉलम बनाकर करना डिफरेंशिएट, है ना? यू नो दैट. नाउ सी Bujo is asking question, why paddy cannot be grown in the winter season? Yes, sir. Who will answer? Sir, paddy takes more water and less sunlight. हाँ देखो पहले आंसर दे रही है. The crops which are sown in the rainy season are known as kharif crops. हाँ. But question is that why paddy cannot be grown in the winter season? Paddy is a kharif crop. It requires lot of water. हाँ, so पहले answering. Paddy requires a lot of water, therefore it is grown only in the rainy season, not in the winter season. Okay, beta. So as we discussed, cultivation of crop. Cultivation means growing crops is called cultivation. है ना? ये same word है cultivation. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a long period, right? And these activities are, ऐसे किसी ने पूछा था, ornamental plants, है ना? Plants which are grown for the decoration purpose. They are called ornamental plants. Okay. So what are the agricultural practices? And in order, you should remember, है ना? So first is preparation of soil, other is sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protection from weeds, harvesting, and storage. Now, first step is
preparation of soil. Okay beta, for the preparation of soil it needs 3 steps. Okay, it needs 3 steps. 3 steps. Okay, the first step is plowing. Can you see the screen beta? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Plowing. First step is plowing. What is plowing? You may note down. The process of loosening and turning the soil is called plowing. हल चलाना बोलते हैं इसको, हल से जुताई करना, that is called plowing, है ना? इससे मिट्टी ढीली हो जाती है. ओके बेटा, the process of turning and loosening the soil is called plowing. It is also called tilling, tilling, है ना? So plowing and tilling same thing. How it is done? It is done with the help of a plow, है ना? Plow is an instrument. अभी मैं डायग्राम दिखाता हूँ plow का. और hoe is another instrument, agricultural implement, है ना? हाँ, hoe is an agricultural implement used for turning and loosening the soil. That is plowing के लिए यूज करते हैं. और a cultivator attached to a bullocks or tractor. कल्टीवेटर को या तो बैलों की जोड़ी खींचता है या फिर आजकल ट्रैक्टर से उसको हम खींचते हैं. एंड कल्टीवेटर है many lines it can form at the same time. Otherwise the plow or hoe it make only a single furrow बनाता है. ओके, बुक देखिए अपने आप. सी योर बुक बेटा. Okay, sir. ये देखिए this diagram, figure number 1.1a. This diagram, it is a diagram of plow. ये वाला जो है ना, ये this part, जहाँ मैं माउस घुमा रहा हूँ, ये है plow, ठीक है? And one long wooden stick is attached, which is called plow shaft. इसको बोलते हैं plow shaft. डायग्राम बनाना है कॉपी, नोट्स बनाते जाना. इसको व्हाइट पेज पे बनाना है डायग्राम. And this portion is called plowshare, which is inserted in the soil. मिट्टी में देखो गया हुआ है, ये पार्ट मिट्टी के अंदर गया हुआ. और इतना जो पोर्शन दिख रहा है, व्हाइट पार्ट दिख रहा है ना, ये है तुम्हारा आयरन का बना होता है बेटा. आयरन का इतना होता है. So that Plowshare कहते हैं. हाँ, so that it can go deeper in the soil and it can make the soil turn. soil के अंदर जाकर मिट्टी को इधर और उधर करेगी, कुछ मिट्टी इधर कुछ मिट्टी इधर बना देगी, है ना? ये देखिए, है ना? एंड वी नीड 2 बुलॉक्स. और दोनों बैल के गर्दन पे देखिए, शोल्डर पे एक बीम रखा हुआ है, लॉन्ग वुड रखा हुआ है, इसको बीम बोलते हैं. बीम से हम टाई कर देते हैं प्लॉ शाफ्ट को. देख रहे हैं आप, प्लॉ शाफ्ट इज टाइड टू द बीम एंड द फार्मर होल्ड्स वन एंड ऑफ द प्लॉ इन हिज हैंड. ये द प्लॉ बनाना है, और या फिर ये जो ये बैल के साथ ये है जो काऊ के साथ ये भी बनाना है? नहीं, सिर्फ प्लॉ बना लो, ये वाला बना लो इतना, ठीक है? प्लॉ बना लेना एंड लेबल कर लेना, प्लॉ शाफ्ट प्लॉ शेयर करके, ठीक है बेटा, है ना? यस सर. ओके, है ना? यू कैन रीड दिस पार्ट आल्सो, हाउ प्लॉइंग इज डन. ठीक है, इसको पढ़ लेना अच्छे से. हाउ प्लॉइंग इज डन, यू कैन रीड इट. नाउ अनदर इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज कॉल्ड हो. ये देखिए हो दिस वन. इसको डायग्राम बनाना है कॉपी में. आपको दिख रहा है डायग्राम? Yes, sir. हो, ये हो है ना? दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर वन मोर पर्पस. इससे हम वीडिंग भी कर देते हैं, वीड्स को हटाने का भी काम आता है. हाँ, उसका भी काम आता है बेटा. ये पूरा आयरन का बना हुआ है, ये बेल्ट प्लेट आयरन का है. एंड दिस हेल्प्स इन टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल. ओके, देखिए हो, इट इज अ सिंपल टूल व्हिच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल. इट इज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and works like a blade. ये देखिए. और तीसरा इंस्ट्रूमेंट है कल्टीवेटर. कल्टीवेटर आजकल इसको ट्रैक्टर से ड्राइव करते हैं. आप देखिए कल्टीवेटर में हाँ, देयर आर मेनी बेंट प्लेट इसमें लगे हैं. तो एक साथ में जल्दी से फास्ट प्लॉइंग होती है खेतों की, और डीप प्लॉइंग होती है बेटा. गहरी जुताई करने काम में आता है.
कल्टीवेटर, इससे है ना? टाइम भी वेस्ट नहीं होता। टाइम भी बचता सर है, इसका हाँ। भी फिगर बनाना है क्या नोटबुक में? इसका नहीं बना करके इसका बना लेना, मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट, इसका बना लेना, इसका छोड़ देना बेटा, इसका मत बनाना, ठीक है? ट्रैक्टर नहीं बनाना है, ट्रैक्टर के जो पीछे लगा है ना, ये इसका वो बना सकते बनाना यस हो, सर। एट द बैक ऑफ द ट्रैक्टर जो है, इसका डायग्राम बनाना, ठीक है बेटा? अब देखिए, व्हाई डू वी प्लो और व्हाई डू वी टर्न एंड लूजन द सॉइल? What are the advantages of turning and loosening the soil? You all know that the soil is hard, है ना? And if we put the seeds in them, the seed will not grow, बेटा, समझ रहे हो? अगर हम डायरेक्ट सीड को डाल देंगे मिट्टी में, तो मिट्टी सूखी होती है, ड्राई होती है, ये कुछ नहीं होगा उसमें। तो सबसे पहले हमें मिट्टी को लूज करना पड़ता है, ढीला करना पड़ता है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल? सो यू मे नोट डाउन द लूजेंड सॉइल, पहले अलाउ ये है ना, when we turn and loosen the soil, this allows the roots to penetrate deep into the soil. The roots of the crop plant will go deeper. Okay. Next, the loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. When we loosen and turn the soil, air gets mixed in the soil. As a result, the roots will get proper air for its respiration. ठीक है बेटा? And next one, the loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes, which can help in making the soil further fertile. Okay? Got it बेटा? यस सर। Okay, sir. And sometimes before plowing we add manure हम डाल करके तब प्लॉइंग करते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है कि the manure get mixed and the fertility of the soil increases, ठीक है? अच्छा, दूसरा फायदा क्या होता है? You know, the top soil is there but nutrients are also below the soil. So when we turn and loosen the soil, nutrients get mixed properly and these can be easily used by the crop plant. Okay, the process of loosening and turning the soil is called tilling or plowing. याद रखिएगा। Define plowing और define tilling, क्या बोलेंगे? The process of loosening and Doing the process, turning soil into. हाँ, ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिए, है ना? मैं नीट में आता हूँ, या देखिए, then let me stop presenting. नहीं, तो करना ही पड़ेगा, चलो ठीक है। हाँ देखो बेटा, है ना, जब हम मिट्टी की जुताई करते हैं तो क्या होते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े पीस निकलते हैं, उसमें कई बार मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं। आफ्टर प्लॉइंग, व्हाट डू वी कॉल देम? एनीवन कैन टेल मी? स्टिल आई एम प्रेजेंटिंग ना। Sir, I don't know. हाँ बोलो बेटा। I What do don't you know. call? क्रम्स। हाँ, क्रम्स, वेरी गुड, किसने बताया? सर अजीब। नाम बोलो। अदीब। सो व्हाट आर क्रम्स? लिख लेना कहीं पे, है ना? उनको बोलते हैं हम क्रम्स, CRUM। CRUMBS, क्रम्स बोलते हैं उनको हम, ठीक है? The big pieces of soil which are formed during turning and loosening or plowing is called crumbs. अब देखो बेटा, आफ्टर प्लॉइंग जब हम प्लो करते हैं तो the soil becomes loose and sometimes big crumbs are there. So we need to break these crumbs also. इस crumbs को तोड़ना पड़ता है. So for this we do another process which is called, हाँ बोलो बेटा, leveling. Leveling, है ना? सो सेकेंड स्टेप प्लॉइंग के बाद है लेवलिंग, दिख रहा है? Yes, sir. द प्लॉड सॉइल, प्लॉड मीन्स लूज सॉइल, है ना?
जो सॉइल अब लूज हो गया था आफ्टर प्लॉइंग इज क्वाइट लूज, सो इट इज लायबल टू बी कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, उसको हवा उड़ा के ले चली जाएगी, और वॉश अवे बाय रेन, या तेज बारिश आएगी तो वो मिट्टी बह के चली जाएगी कहीं और। यू नो दिस इज वेरी फर्टाइल सॉइल, सो टू प्रिवेंट दिस द प्लॉट सॉइल इज लेवल्ड, उसको बराबर करते हैं, थोड़ा हल्का सा प्रेस कर देते हैं बाय प्रेसिंग इट विथ अ वुडन और एन आयरन लेवलर। ठीक है, इससे सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है एंड वाटर कैन फ्लो इजीली इन वन डायरेक्शन थ्रू आउट द सॉइल। एनी क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर अगर हम सॉइल को लेवल कर देंगे तो सर सॉइल तो वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे ना, सॉइल पार्टिकल्स, तो फिर सॉइल लूजन कैसे होगी? Good question. But during leveling, we do not press much. We press little bit. हल्का सा प्रेस करते हैं बेटा, हल्का सा प्रेस करके थोड़ा सा वजन दे करके किसान खुद खड़ा हो जाता है उसके ऊपर में, है ना। एक लेवलर होता मैंने है, देखा था वो। हाँ आयरन का होता है या लकड़ी की होती है, पटिया होता है लकड़ी का, उस पटिये में आगे हुक लगा होता है, आगे चेन लगा होता है, फिर बैलों के जो गर्दन पर लगी थी ना प्लॉ, उसके ऊपर जोड़ देते हैं और किसान उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, बैल को आगे बढ़ाता है और इस तरह से हल्की हल्की मिट्टी प्रेस हो जाती है। ठीक है परम? सर मैंने ट्रैक्टर वाला देखा था, जैसे ट्रैक्टर से होता है ना। फिर ट्रैक्टर से भी करते हैं इसको है, बट ज्यादा प्रेशर नहीं डालते बेटा, है ना, नहीं तो फिर तो मिट्टी पूरी जम हल्का जाएगी। सा डालते हैं। हाँ हल्का सा प्रेशर डाल के करते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, नहीं तो मिट्टी उड़ जाएगी वहां से, खत्म हो जाएगी, हट जाएगी बेटा। ठीक है, तो दो काम करता है लेवलिंग। लेवलिंग में जो क्रम्स होते हैं दे आर ब्रोकन डाउन फर्दर एंड द सॉइल little it gets pressed so that it cannot be eroded by wind or water. Okay, and third step में हम करते हैं मैन्योरिंग भी करते हैं इसको। मैन्योरिंग मीन्स एडिंग मैन्योर टू द सॉइल। समटाइम्स जरूरी नहीं है, कभी कभी जब लगता है किसान को कि हमारे खेत की फर्टिलिटी थोड़ी कम है, देन ही एड्स मैन्योर बिफोर प्लॉइंग। प्लॉइंग के पहले ही मैन्योर डाल देता है। बड़े बड़े ये क्या बोलते हैं उसको आप, बांस के बड़े बड़े कंटेनर बना कर रखते हैं छोटे छोटे ऐसे करके, आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं, बास्केट, है ना, बास्केट ऑफ बैम्बू बास्केट्स होते हैं, उनमें भर करके वो ले जाता है मैन्योर को। मैन्योर बनाने के लिए क्या करता है वो, जो काऊ डंग है या ड्राई लीव्स वगैरह है या घर के बच्चा कुछ खाना वगैरह होता है, इसको गड्ढे में डालता जाता है और उसमें हल्का सा मिट्टी डाल देता है, हाँ, और इस तरह से then this converts into manure, इसको हम कंपोस्ट भी बोलते हो। ये केमिकल भी होता है क्या ऐसा? इसमें केमिकल्स नहीं होते, इट इज नेचुरली सब्सटेंस बेटा, है ना, इसमें हम मैनमेड केमिकल नहीं डालते। जो नेचुरल सब्सटेंस है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैन्योर ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, है ना, स्कैवेंजर्स, बैक्टीरिया, फंजाई, इनकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है मैन्योर में। ठीक है, तो इसको ऐड करके and then plowing is done so that the fertility of the soil, the nutrients in the soil gets little bit more increased. Okay? Okay sir. So first step, any question on the first step? No sir. Turning and loosening the soil, है ना, याद रखिएगा। What are the advantages of turning and loosening the soil? क्या एडवांटेज होता है? So first advantage is that this allows the roots to penetrate deep into the soil. Second one, the loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. ठीक है बेटा, the loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes, which further help in turning and loosening and adding certain nutrients. Okay? Okay sir. And remember, you may be asked, write a short note on the plow. Then you have to write down about the plow, its parts describe करना है, diagram बनाना है. You may be Sir, मैं asked, parts describe कर सकती हूँ. हाँ करो. It contains a strong triangular strip called plowshare and a long log of wood called plow shaft. Plow shaft, very good.
and there is a handle at one end of the shaft whose other end is attached to the beam which is placed on the bullock's neck. दिख रहा है डायग्राम? देखिए ये जो लंबा लकड़ी है बीच में, दिस इज कॉल्ड प्लॉ शाफ्ट, और ये क्या किया हुआ है, इट इज केप्ट ऑन द अनदर लॉन्ग वुड विच इज कॉल्ड बीम। बीम पे बांधा हुआ है, और बीम कहाँ रखा हुआ है, दोनों बैलों के कंधे पे रखा हुआ है ना बेटा। नाउअडेज दिस इज मोस्टली रिप्लेस्ड बाय द ट्रैक्टर। ट्रैक्टर्स यूज कल्टीवेटर से हम ज्यादातर खेती कर रहे हैं, ठीक है। मे बी आज शॉर्ट हो। हाँ बोलो बेटा। सर अगर ये जो बीम है जो बुलक्स के ऊपर लगाई जाती है वो हाँ। अगर हल्की सी टेढ़ी हुई तो फिर डिफरेंस आएगा? हाँ बेटा, ये स्ट्रेट होती है, और हम बैल भी चूज करते हैं ना, बराबर हाइट के बैल चूज करते हैं ताकि ये बैलेंस बना रहे, नहीं तो एक बैल को कंधे दुखने लगते हैं, बैल को परेशानी होती है थोड़ा ज्यादा, है ना। ठीक है बेटा, आगे चलें। यस हाँ। सर। फिर हो के ऊपर भी लिख लेना, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द हो, लिख लोगे? हाँ सर लिख लेंगे। वेरी गुड। सो मैं बताऊं? हमें रहने दो बेटा, लिख लेना, उसके बाद पूछूंगा ना, फिर आपको टेस्ट भी होंगे ना, टेस्ट में बताने तैयार आना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में चले, सेकेंड स्टेप। यस सर। सेकेंड स्टेप इज सोइंग। सोइंग का मतलब सीड को मिट्टी में डालना, दैट इज कॉल्ड सोइंग, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बुआई करना, है ना, बीजों को खेतों में डालना, बीज बोना, है ना। सो हाउ डू वी डिफाइन सोइंग? यू मे नोट डाउन द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग, फैला देना, और पुटिंग सीड्स, कोई भी एक लिख लेना, पुटिंग या स्कैटरिंग। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड सोइंग, ठीक है बेटा। बट बिफोर सोइंग वी शुड इंश्योर दैट द सीड्स आर ऑफ गुड क्वालिटी, है ना। सीड्स गुड क्वालिटी के होने चाहिए, और दूसरा इट शुड बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीजेज, ठीक है। सो दो बातों का ध्यान रखेंगे बिफोर सोइंग द सीड्स, क्या क्या? वन, गुड क्वालिटी गुड सीड्स क्वालिटी सीड, and they should be clean and healthy फ्री and free from infection and disease, infection and disease. ठीक है। इसको कैसे पता Okay, करेंगे, कैसे पता करेंगे कि हमारा जो सीड है वो गुड क्वालिटी का है? हाँ देखिए, एक एक्टिविटी दिया है, आप भी घर में कर सकते हो। क्या करोगे? लेट मी कम टू द, सर उसको पानी में डाल देंगे, हाँ आप क्या करना है, ऊपर आ जाएंगे पानी के। बिल्कुल एक बकेट में तो पानी ऊपर लेना, आएंगे, वो अच्छे वाले नहीं चलेगा, वो अच्छे नहीं है। नहीं ऊपर वाले नहीं, ऊपर वाला ही खराब रहेगा, देखना पड़ेगा आपको। देखिए, विल टेक अ बकेट, विल हैव वाटर एंड विल पुट द सीड्स, इसमें सीड्स डाल देंगे, है ना। कई बार सीड्स क्या होते हैं, कटे फटे होते हैं और अंदर से हॉलो होते हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो सीड के अंदर से खोखला हो जाता है वो, तो क्या होंगे, जो बैड सीड्स होंगे दे विल फ्लोट करने लगेंगे, उनको हम निकाल कर बाहर कर देंगे, एंड गुड सीड्स विल सेटल डाउन, है ना। फिर उनको बाहर निकाल करके उनको सुखा लेंगे अच्छे से, सर ठीक आप है। बता रहे थे घर पे भी ऐसे किसी चीज के लिए यूज करते हैं? हाँ बेटा, और देखो ध्यान से, दूसरी बात सर्टेन फंगस लगे होते हैं सीड्स में, यू नो, स्पोर्स ऑफ फंगस ये लगे होते हैं, उनको हटाने के लिए फंगीसाइड में सीड्स को पहले ट्रीट करते हैं। ये सीड्स को एक फंगीसाइड नहीं कुछ मिले तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में सीड्स को डाल करके थोड़ी देर रहने देते हैं, फिर उनको निकाल कर सुखा लेते हैं, एंड देन दैट सीड शुड बी सोन, ठीक है। The seed is treated with some chemicals so that the germs and other infections are removed. हाँ बोलो बेटा। सर एक क्वेश्चन तो मेरा ये था कि अगर सीड्स के लिए पानी अच्छा होता है जर्मिनेशन के लिए, पानी डालते हैं जर्मिनेशन के लिए, तो सर फिर उसको सूखना जरूरी क्यों है? इसलिए इतने बिगनिंग में क्या होगा ना, थोड़ा खराब हो जाएगा बेटा, है ना, बिल्कुल ही गल जाएंगे। हाँ खराब हो जाएगा, उसमें हम डालेंगे, वाटरिंग करेंगे, देन विल पुट इट इनटू द सॉइल में डालने के बाद बेटा, है ना।
और सर फंगाई भी तो अच्छा होता है ना नहीं बेटा, प्लांट्स के लिए? नहीं नहीं, जब फंगस के साथ में अलगा है ना, जब मिलेगा तब दोनों मिलके रहेंगे तब जाकर अच्छा है। ये अकेला फंगस किसी काम का नहीं है, याद आ रहा है? लिचेन के फॉर्म में यूजफुल है, अभी नहीं। ओके ठीक है, थैंक अभी तो क्या करेगा, सीड को खराब कर देगा, सड़ा देगा। जब अकेला फंगस ग्रो करता है ना किसी भी फूड आइटम पे, देखते हैं आपके जो बच्चे कुछ खाना होता है उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाता है, तो यू कैन नॉट ईट दैट फ्रूट, दैट फूड, है ना? सो समझ में आ गया बेटा ये इतना? Then one more thing बेटा, nowadays high yielding variety seeds are available in the market, है ना? हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब द सीड्स विच गिव्स अस मोर क्रॉप यील्ड, ज्यादा हमको फसल देते हैं, ऐसे सीड्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। दे हैव बीन डेवलप्ड साइंटिफिकली, राइट, बाय क्रॉस ब्रीडिंग करा करके, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में, सीप की क्रॉस ब्रीडिंग करा करके अच्छे वूल लेते थे ना, याद आ रहा है? यस सर। है ना? ऐसे ही यहाँ से भी क्रॉस ब्रीडिंग करा करके, है ना, हम हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड लेते हैं। सो द फार्मर शुड चूज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। जैसे देखो अभी अशोकनगर, गुना आसपास में एक गेहूं की हाई यील्डिंग वैरायटी उगाते हैं। डू यू नो विच बताओ कौन सा वीट का क्वालिटी है वो? शरबती नाम सुना? शरबती। हाँ, शरबती जो है ना हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड है। हाइब्रिड सीड्स भी आते हैं आजकल, हाइब्रिड सीड्स भी आने लगे, है ना? गंगा 101, शरबती, तुम्हारा फिर धान की बहुत सारी किस्में हैं जो हाई यील्डिंग देती है, पंकज, जया, पद्मा, है ना? अब गेहूं की दूसरी है सोना कल्याण। इस तरह से आजकल हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स अवेलेबल हैं। सो फार्मर को सीड शो करने के पहले क्या करना चाहिए? He should make it sure that the seed should not be cut or hollow from inside, or it is attacked by the insects or pests. It should be free from germs and diseases. Okay? ओके सर। सर मेरे को ये पूछना था, जब पहले सीड्स का जो सीड्स अभी बनते हैं इस समय पे अपन को डालने नहीं पड़ते एक बोरी में से निकाल के, तो वो कैसे बनते हैं? देखो एक तो बेटा क्या करते हैं हम, जब हमारा फसल ग्रो हो जाती है तो हम घर ले आते हैं और वो सीड कुछ बचा के रख देते हैं अलग से, है ना? उसको यूज कर लेते हैं, है ना? आजकल जो चल रहे हैं वो कैसे बनते हैं? आजकल जो चल रहे हैं बेटा वो जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, है ना, और वहां पर सीड्स की हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉस ब्रीडिंग करा करके ग्रो कराते हैं, और वहां से वो सीड को ला करके पैक करके रखा रहता है, वहां से खरीद के लाते हैं हम। तो बाजार से सीड खरीद के लाते हैं कई बार, है ना, वो बोरे में से खरीद के लाते हैं, उस सीड्स की बात आप कर रहे हैं, ठीक है? Am I right? यस सर। हाँ बेटा, है ना? हम लोग के सामने भी वही वाले यूज होते हैं। हाँ बेटा, है ना? सो रिमेम्बर सिलेक्शन ऑफ सीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा अब सेकंड थिंग आइए, सीड्स को शो करने का क्या तरीका होगा? एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं सीड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है? उसमें किसान मुट्ठी में सीड को लेता है और खेत में स्प्रिंकल कर देता है, स्कैटर कर देता है। इसके नुकसान हैं, क्या होगा? ये सीड मिट्टी के ऊपर रहते हैं तो चिड़िया वगैरह आकर खा जाती है ना बेटा? अनमोल, है ना? तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं? एक ट्रेडिशनल टूल यूज करते हैं जिसका नाम है सीड ड्रिल, है ना? तो ये देखो एक फनल जैसा है, ऊपर में फनल जैसा है, नीचे एक लॉन्ग ट्यूब है। तो किसान क्या करता है, फिर से एक बार अपने खेतों में हल चलाता है और दूसरा किसान इसमें दो सीड्स डालता जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से he can maintain proper distance and proper depth। सीड को शो करने के लिए सॉइल बहुत ड्राई भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो जो सीड है वो ग्रो प्रॉपर नहीं कर पाएगा बेटा,
है ना। और अगर बहुत ड्राई है देन ऑल्सो विल नॉट जर्मिनेट। ठीक है। दूसरा क्या ध्यान रखना, नॉर्मल चाहिए होता है। प्रॉपर डिस्टेंस शुड बी मेंटेन एंड प्रॉपर डेप्थ, सीड शुड बी सोन एट द प्रॉपर डेप्थ। ठीक है। एनी क्वेश्चन? नो सर। आजकल देखो सीड ड्रिल आ गया है। इस सीड ड्रिल में एक साथ 3 1 2 3 4 5 देखो 5 फरों में सीड हम लोग शो कर सकते हैं। और इसमें ट्रेडिशनल में क्या होगा, सिंगल लाइन में सीड डाल पाएंगे बेटा। सर ये जो नया वाला है उसका टाइम वेस्ट नहीं होता। होता है, इसमें टाइम बचेगा अगर हम सीड ड्रिल यूज कर रहे हैं तो। ठीक है। सर मैंने ये वाला देखा है सीड्रिल, हाँ बेटा, वो अगर गाय आप वाला नहीं देखा। any farmer who is practicing modern method of agriculture, then there you can see all these things. Seed drill, nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. This allows, remember देखो, seeds uniformly at equal distance and depth. ठीक है बेटा। इससे क्या होता है, each seeds get covered by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. ठीक है। So seeds should be sown in the dry soil. Is it correct? जल्दी बोलो। हेलो, कैन यू हियर मी बेटा? यस सर, वी कैन हियर। हाँ, ठीक है। So appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding. Why should we maintain proper distance between seeds? To avoid overcrowding of plants. This allows plants to get proper sunlight, nutrients and water from the soil. सबको बराबर बराबर मिल जाएगा। सब कुछ मिलना चाहिए उसको। ठीक है। अब ध्यान दीजिए। हाँ, कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली सीड्स आर नॉट ओनली सोन, सम क्रॉप प्लांट्स दे आर ट्रांसप्लांटेड। सो ट्रांसप्लांटेशन, हैव यू हर्ड द नेम ट्रांसप्लांटेशन? यस सर, उसे नर्सरी से वहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है। हाँ, ट्रांसप्लांटेशन याद रखिएगा। क्या करते हैं, कैन यू नेम सम क्रॉप्स व्हिच आर ट्रांसप्लांटेड? यस सर, वीट, हाँ पैडी, ब्रिंजल, हाँ, ब्रिंजल, सर टोमेटो, टोमेटो, गुड, चिली, है ना, मिर्च की खेती में चिली, टोमेटो, इन सब की हम करते हैं ट्रांसप्लांटेशन। आपने देखा होगा कई बार गुना जाओ तो गुना में जो पुलिया है, सब्जी मार्केट में जाते हैं, वहां पर छोटे छोटे बैंगन के पौधे, छोटे छोटे मिर्च के पौधे, छोटे छोटे टमाटर के यस सर पौधे, देखा है। सर देखा है। इनको बोलते हैं सीडलिंग। क्या बोलते हैं इनको? सीडलिंग। सीडलिंग बोलते हैं, है ना, सीडलिंग बोलते हैं। तो इनको डायरेक्ट जो है ना नहीं लगाते, सीडलिंग्स को वापस जाकर के मेन फील्ड में बराबर दूरी पर हम उसको फिर से ट्रांसफर करते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। अच्छा, सीरियल क्रॉप्स के बताओ, नेम 2 सीरियल क्रॉप्स, अनाज वाले पौधे। ये तो अनाज वाले नहीं है, ये सब्जी वगैरह है। बताओ सीरियल क्रॉप्स व्हिच आर ट्रांसप्लांटेड। वीट, वीट, कॉलीफ्लावर तो सब्जी में आ जाएगा। व्हीट नहीं, व्हीट की नहीं होती है, व्हीट का डायरेक्ट सीड डालते हैं खेत में। सर पैडी, धान। हाँ, पैडी, वेरी गुड। पैडी की पहले नर्सरी में हम छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, फिर उन पौधों को उखाड़ते हैं, फिर उनकी बंच बनाते हैं 2 या 3 का, क्योंकि ये छोटे एक सिंगल में गिर जाएंगे, हवा से नीचे गिर उनको जाएंगे। नर्सरी में जाके बेचते हैं। हाँ, फिर उसके बाद करते हैं पैडी। इसके अलावा एक और बताओ, 2 सीरियल क्रॉप है जिसकी हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, पैडी करते हैं, दूसरा है रागी। लिख लो। सर रागी क्या होता है? रागी एक का आपने देखा होगा, रेडिश ब्राउन कलर का गोल गोल राउंड सीड आता है ना, जिसको कई लोग मडुआ बोलते हैं गांव की भाषा में, है ना। इसके लिए आटा बनाते हैं। हाँ बेटा, ये एक्चुअली बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या है कि
इसको लोग कम खाते हैं, अदरवाइज इट गिव्स अस, इट इज रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम आल्सो, है ना। अब इसको पहले पीस लेते हैं, आटा बनाते हैं। आटा हल्का सा लाल रंग लिए रहता है, आटा जो होता है ना हल्का लाल रंग लिए रहता है आटा। और इसकी भी रोटी बना खा सकते हो, इसकी भी आप क्या बोलते हैं दलिया ऐसा बना खा सकते हो, एंड इट इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ आल्सो। रागी, बाजरा? नहीं बाजरा नहीं बेटा, बाजरा को तो हम डायरेक्ट खेतों में बोते हैं, सोइंग करते हैं उसकी। रागी के सीड्स को पहले जैसे पैडी की तरह ही खेतों में ट्रांसफर, नर्सरी में पहले उगाते हैं, फिर वहां से ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसप्लांटेशन, है ना। कल हमने जो पिक्चर दिखाई थी आपको एक, है ना, उसमें आपने देखा था किसान जो है खेत में धान के खेतों की ट्रांसप्लांटेशन कर रहा था, उस वीडियो को देखा था आपने? यस सर। याद आ रहा है? हाँ जी, है ना। पानी में कर। हाँ हाँ, पानी में, घुटनों भर पानी में घुस करके इसको करते हैं, एंड दैट इज दैट। सो याद रखिएगा, है ना, ट्रांसप्लांटेशन याद रहेगा बेटा। यस सर। सोइंग का ही पार्ट है। सो डिफाइन ट्रांसप्लांटेशन। Sir, the process of transferring of seedlings from nursery to main field is called transplantation. Very good. So remember, 2 cereal crops which are transplanted. Sir, Paddy paddy and ragi. and ragi. ठीक है, and many other crop plant you can name which are transplanted. उनके पहले हम सीडलिंग उगाते हैं नर्सरी में, फिर उनको ट्रांसफर करते हैं मेन फील्ड में। द प्रोसेस है ना, ब्रिंजल, चिली, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, है ना, इन सब की भी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। छोटे छोटे पौधे पहले उगाते हैं। सर मैंने चिली वाला देखा है। हाँ, चिली का छोटे पौधे देखा होगा आपने। आप अपने घर में भी कर सकते हो बेटा, अगर आप घर में गमले हो ना, गमले, सर मैंने गमले में भी लगाए थे। हाँ, गमले में चिली के सीड्स, आप घर में किचन में जाना, मम्मी को बोला मम्मी 2-4 सूखी मिर्च दे दो, उसका सीड निकाल लेना, बस ध्यान रखना मिर्च को हाथ में छूने के बाद में अच्छे से धो लेना, तो आंख अगर छू लोगे ना तो आंखों में दर्द जलन होने लगेगा। उनके सीड निकाल लेना और उस सीड को ला करके गमले में डाल देना, ऐसे करके स्प्रिंकल कर देना, हल्का सा पानी डालना उसमें, और ध्यान रखना थोड़ा उसमें बहुत ज्यादा सूख ना जाए वो। आपको 8-10 दिन में आपको देखेंगे छोटे छोटे चिल्ली के पौधे निकल आएंगे। तो दीज आर द सीडलिंग्स निकल आए। अब उनको अच्छे से उखाड़ लोगे, फिर 3-4 की बंच बना करके उनको दूसरे गमले में ट्रांसफर कर देना, तो आपने चिली का ट्रांसप्लांटेशन कर लिया। ठीक है बेटा। सर मैंने नानी के घर पे देखा था टमाटो का करते हुए। वेरी गुड बेटा, है ना, गुड, राइट। सो एनी क्वेश्चन टिल सोइंग वी हैव लर्न, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, है ना। कई बार हम बार बार खेतों में बार बार हम फसल उगाते हैं बेटा। सो व्हाट हैपेंस इन दिस वे, द न्यूट्रिएंट्स गेट डिप्लीटेड, है ना, क्योंकि जो क्रॉप प्लांट है, एवरी क्रॉप प्लांट इट विल टेक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। What will happen? The nutrients become less in the soil. So it is very essential that we have to maintain the level of nutrients in the soil. ठीक है। So अगली पीरियड के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। What are the nutrients which are required by the crop plant? Crop plant को कौन कौन सा nutrients लगेगा? What are the nutrients needed for the crop plant? है ना, क्रॉप प्लांट के लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, and what is the source of that nutrient? वो न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है पौधे को। ओके सर। ठीक है, इसकी लिस्ट बनाएंगे आप लोग, है ना। सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? देखो, 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप प्लांट। वन इज कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, अदर इज कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, MICRO, अदर वन इज MACRO। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। So what are the macronutrients needed and what are the micronutrients needed and what is the source of these nutrients? उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में तो नाइट्रोजन, कैल्शियम और सल्फर होता है। हाँ जी, हाँ जी, ये होमवर्क है, अगले पीरियड में बताएंगे आप मुझे, है ना। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पीरियड बेटा। ओके सर। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा इसमें किसी क्वेश्चन पूछा है पूछ सकते हो।
नो Tell me. सर. We learnt about plowing, turning and losing the soil. What are the advantages of plowing? है ना बेटा? Then we learnt about sowing. Sowing के लिए seeds को हम पहले कैसे उसको ट्रीट करेंगे, है ना? कैसे इंश्योर करेंगे कि सीड हमारा गुड क्वालिटी का है ना? We learnt about high yielding variety seeds. उन्हें कुछ नाम बताया मैंने, इनके बारे में थोड़ा और सर्च करना बेटा, है ना? सर हाँ सर मैंने घर पे देखा था कि दादू जब एक प्लांट लगाते हैं तो उसमें बाद में जब पानी डालते हैं तो उसको खोदते हैं और फिर उसमें पानी डालते हैं. हाँ हाँ, ताकि वो अच्छे से ऐसा पानी क्यों? पानी ऊपर 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 देने के बाद वो चाहते हो कि पानी थोड़ा जल्दी से मिट्टी के नीचे चला जाए, इसलिए थोड़ा पानी डाल रहे हैं बेटा. अच्छा ठीक है, सर. और इससे फायदा होता है वो फिर पानी डालने के बाद मिट्टी से कवर कर देते हैं तो वो पानी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है. अभी धूप तेज पड़ रही है ना, तो वो पानी अगर आप ऊपर में डालोगे तो आधा पानी क्या होगा, इवेपोरेट होकर के हवा में चला जाएगा, है ना? ऐसे भी अभी अगर आप गमले वगैरह में पानी डालते हो ना, तो पानी डालने के बाद में सूखे पत्तों से ढक दो उसको, तो क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा. वो पानी वेपर बन के हवा में नहीं जाएगा, वो वहीं पे रहेगा और आपका क्रॉप प्लांट सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगी. एक डाउट था हाँ बेटा बोलो. सर, अगर हम सर एक बार प्लोइंग कर लें और उसके बहुत टाइम तक हम क्रॉप्स उगाते रहे, मतलब सर 15-20 बार क्रॉप्स उग गई फिर हमने प्लोइंग नहीं की तो क्या होगा? नहीं नहीं, आपका जो क्रॉप यील्ड है बहुत कम हो जाएगा, प्लांट तो उगेगा ही नहीं. बहुत कम मिलेगा आपको. तो एवरी टाइम यू विल हैव टू प्लॉ, है ना? You ask me in the next period, beta. I will answer. Okay. Now time is over. So let us conclude by chanting Shanti Path. Shubhra, join me. Okay. Sai Ram, beta. है ना? Sairam sir, thank you. Bye. Thanks, sir.